Okay. So the theme and the topic for today's session is like we have to write an application or we have to draw an application. We have to develop an application that will draw the basic graphical primitives on the screen. Okay. So we have a screen, and on that screen we are going to draw the text. We are going to draw the line. We are going to draw circle, rectangle, square, all these shape we are going to draw. Okay. And now how we can do it? Okay, so with the help of image view. So the graphical part, what we have to do, regarding the XML file, we have to take one image view. That image view will not contain any kind of image, that will be blank like a white screen. Okay, we have to take few classes like the bitmap, canvas, paint. All these classes are very familiar. If you have done the advanced Java, then you are familiar with all these type of classes like uh, bitmap, canvas, paint. So all these classes are used to draw these basic graphical primitives. Okay, that's very simple. Draw line, draw text, draw circle, draw rectangle. You heard about all these method, okay, which are available in the advanced Java. So ये सारे के सारे आप लोग भी कर सकते हैं. एडवांस जावा भी नहीं, आई थिंक ये आप लोग हाँ एप्लेट के अंदर, हाँ मैं तो भूल गया. एप्लेट के अंदर ही आप लोगों ने किया होगा, इन्हें कि एडवांस में जाने की जरूरत भी नहीं. एप्लेट प्रोग्रामिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं. कैनवास पे आप लोग ड्रॉ करते थे. ओके, स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम पॉलीटेक्निक, दे हैव डन द डिप्लोमा. तो आप लोगों ने ये जावा में किया होगा, जावा प्रोग्रामिंग फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने किया होगा. ओके, और जो लोग नहीं हैं तो उन लोगों ने भी जावा तो कहीं ना कहीं किया होगा, ओपीएम वगैरह में किया होगा. सो इन दैट यू आर हैविंग द एप्लेट प्रोग्रामिंग. सो एप्लेट के अंदर ही ये आपको सारे सारे मैसेज मिल जाएंगे. ओके, so let us start with the actual implementation, because यहाँ बोल के तो कुछ भी मतलब फायदा नहीं है. When we'll start with the implementation, then we will automatically will continue. Okay, so let us start with the Android Studio. This is open, and my Android Studio is already open. Okay, and then let me start the new project. Actually, I have already created that particular this particular experiment. I have already done. This is experiment number 6. बट जो मैं करता हूँ वो उसको मैं स्मॉल में रखता हूँ, EXP6. ओके, अब जो नया प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं, तो दिस इज एम्प्टी एक्टिविटी. नेक्स्ट experiment 6. Okay, so this is the name of the application. So next, that done, finish. So we need to wait until the process is getting loaded. The Gradle is still syncing. Finished, done, everything is done. So what, if you want to check whether all the things are done, you can go to the XML file. The XML file is also ready. You can just keep this text view out of the screen. हटा दिया मैंने इसको, ठीक है. So you can see over here, this is the layout now. Okay, and उसके ऊपर कुछ भी नहीं है अभी. Nothing is there. Okay, हमको कुछ भी नहीं, हम लोग खाली एक image view डालना है. As far as your XML file is concerned, we need to put only one image view, only one component is required, because it will act as a canvas. So उसके ऊपर हम लोग canvas लगाएंगे और फिर उसके ऊपर हम लोग draw करेंगे. Okay, so चलो आते हैं design part पे. The very first thing we need to do over here is we have to take one image view. Okay, so you know how to take the different components on the screen. You can click on any component, whatever component you require, you can click on that particular component, you can drag it and you can drop over here. Okay, so it will show you the center line. Okay, so I'll keep it over here. It will ask you for the image. Okay, कोई भी एक image के लिए आपको पूछेगा. ठीक है, अगर आपको इमेज रखना है तो रखो, नहीं इमेज रखना है तो सिंपल आप उसको बाद में हटा भी सकते हो. ओके, तो सिंपल मैं कौन सा भी इमेज लेके मैं ओके ओके कर देता हूँ. तो यू विल फाइंड वन इमेज इज देयर. ओके, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ हिसाब. सो आई केप्ट इट ओवर हियर. यहाँ पर ले लिया मैंने इसको. अभी इसका आपको साइज क्या करना है, इसका विड्थ और इसका हाइट दोनों दोनों आपको चेंज करना है. तो चेंज करने के लिए अगर आप उसको the width should be equal to the width of the screen and the height should be equal to the height of the screen. अगर ऐसा करना है then you have a option. Okay, इस component का option है, इसकी width और इसका height. Okay, so layout का width and layout का height you can change it. Okay, right now the width is 263 dp.
can change it with the match parent. The option I told you in the last session, that you can keep it as a match parent so that it will take the width of the screen width. Okay, and अगर height को भी अगर match parent कर देंगे तो it will take the height of the screen. तो यहाँ पे मैं लेता हूँ MET match parent. Okay, इसको change नहीं करता हूँ अभी. Now we'll go to the design part. Will find आपकी जो component है, this is the image view component. It has taken the width as a screen width. Okay, or now I'm going to change the height of this particular component as the height of the screen. So you will see over here, तो पूरी स्क्रीन ले लिया. ओके, नाउ द सेकंड टास्क. नाउ सेकंड टास्क मुझे करना है कि इसका जो इमेज है वो मुझे हटाना है. आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इमेज ओवर हियर बिकॉज ओवर ऑन दिस स्क्रीन आई एम गोइंग टू डिस्प्ले सम सॉर्ट ऑफ ग्राफिकल प्रिमिटिव्स. ओके, मुझे वहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है, मुझे लाइन ड्रॉ करना है, मुझे कुछ लिखना है. आई नीड टू ड्रॉ सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ओवल, all these different kinds of what we can say graphical primitives I need to draw on this particular screen. So no any so any kind of image is not required on the screen. Okay, so you will find the parameter over here. So in the parameter you will find in image view there is a SRC. SRC nothing but the source of the compact. Okay, so you can see sample background scenic करके एक यहाँ पर दिया हुआ है. Okay, so what I'm going to do, I'm going to remove this line. Okay, आप लाइन को रिमूव कर दो या इसको हटा दो. सिंपली कमेंट कर दो मुझे इसको हटाना है. ठीक है, डन. ठीक है, तो जो इमेज पार्ट था मैंने हटा दिया, मुझे कोई इमेज नहीं चाहिए. नाउ गो टू द डिजाइन पार्ट. यू विल फाइंड द इमेज व्यू इज स्टिल प्रेजेंट ओवर हियर बट नथिंग इज देयर. कौन सा भी यहाँ पर इमेज आपको दिखेंगे. ठीक है, ये हमारा जो भी XML काम था, हमारा XML साइट का जो काम था दैट इज डन नाउ. ओके, अब whatever task which is remaining now is from the Java file. Okay, because we need to draw and we need to write the code regarding all those shape. Okay, which are required on the screen. Okay, so first of all we'll go to the Java file now. Okay, so first of all Java file को आपको क्या करना पड़ेगा. अरे बोलो क्या करना पड़ेगा Java file को. सबसे पहले जावा फाइल के अंदर आपको अपने इमेज व्यू का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ठीक है, विल टेक द इमेज व्यू. कहाँ इमेज व्यू भैया, इमेज व्यू ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं आई. ओके, ठीक है, आई वी इमेज व्यू थोड़ा अच्छा लगता है, आई व्यू. दैट्स ऑल. अब आते हैं हमारे मेथड में. अब सबसे पहले इसका लिंकिंग कर देते हैं. आई वी इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट का इमेज व्यू. हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है हमारा, सॉरी आईडी इसका ये है. तो आईडी इज आल्सो लिंक नाउ व्हिच इज डन. ओके, अब यहाँ पर हम लोग को कुछ क्लासेस लेना पड़ेंगे. ठीक है, वी नीड टू इंपोर्ट सम क्लासेस आल्सो. और उन क्लासेस का यूज़ करके जैसे कि मैंने आपको बताया वी नीड टू टेक द बिट मैप, we need to take the canvas, and we need to take the third one that is paint. Okay, so these different classes we have to take. Okay, in order to draw the shapes. Okay, heat map required है, वो हमको कुछ पैरामीटर के साथ में लेना है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले कुछ लेता हूँ. फर्स्ट आई विल शो यू. This is the class. Okay, we have to create one object of this bitmap which is the class. Okay, एंड उसका ऑब्जेक्ट बना के हम लोग को साइज मेंशन करना है. ठीक है, कितनी साइज. ओके, तो वो साइज मेंशन करके वी नीड टू गिव द, मैं आपको ये करके बता देता हूँ. सबसे पहले ले लिया मैंने बिट मैप. दिस इज द क्लास. ओके, एंड यू विल फाइंड दिस इज द क्लास फ्रॉम द एंड्रॉइड डॉट ग्राफिक्स. ओके, सो वेन एवर यू रिक्वायर्ड सम ग्राफिक वर्क सो यू कैन टेक दिस बिट मैप क्लास. ओके, सो ये रही आपकी बिट मैप क्लास. इज इक्वल टू, कहाँ इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने बीच में, सेम जैसा है वैसे मैंने बना दिया. इज इक्वल टू आपको एक क्या करना है, एक बिटमैप क्रिएट करना है. ओके, आपको एक बिटमैप क्रिएट करना है. सो मेथड इज दैट बिटमैप डॉट क्रिएट बिटमैप. बिटमैप डॉट क्रिएट बिटमैप, उसमें हमको सोर्स प्रोवाइड करना है. ठीक है, सो बिटमैप डॉट क्रिएट बिटमैप यू कैन फाइंड हियर. बिटमैप डॉट क्रिएट बिटमैप, यहाँ पर आप देख सकते हैं bitmap.create bitmap, और आपको बाद में इसकी साइज मेंशन करना है.
विड्थ और हाइट मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पर जो साइज है वही साइज मेंशन कर देता हूँ, दैट इज 720 कॉमा 1280, I think so, हाँ 1280, so this is I have defined the size also। उसके बाद में फिर एक छोटा सा पैरामीटर और है, देखो ये पहले फीचर नहीं था, मैं इसी का वेट कर रहा था। यू विल फाइंड, तो ये ऑटोमेटिक लिख के आ गए, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद चला जाएगा, ठीक है। आइए आपने नहीं लिखा है बट ये ऑटोमेटिक आ गया है। सो इट शो दैट के 720 इज द विड्थ ऑफ द बिट मैप यू आर क्रिएटिंग एंड 1280 इज द हाइट ऑफ द बिट मैप यू आर क्रिएटिंग, ओके। उसके बाद में एक और पैरामीटर है, तो बिटमैप डॉट कॉन्फिग, आपके बिटमैप को कॉन्फ़िग करना है। ARGB एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके जो कुछ फीचर्स है वो हमको मिलेगी। तो आपको मैं बताता हूँ और भी कौन-कौन से होते हैं। बिटमैप डॉट कॉन्फ़िग बिटमैप डॉट कॉन्फ़िग डॉट, अब यहाँ पर जब आपको उसके सारे कांस्टेंट मिलेंगे, द वन विच वी हैव टू टेक इज ARGB। आरजीबी तो आपको पता है, तो ये ARGB वाला कुछ है कांस्टेंट, तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। दैट कॉन्फ़िगरेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द बिटमैप वी हैव क्रिएटेड, ओके। कौन सा बिटमैप क्रिएट किया हम लोग ने, बीजी वाला क्रिएट किया, ठीक है। तो ये भी है, अल्फा 8 है, हार्डवेयर RGB 565 जब पहले यूज होते थे, RGB F16। सो ऑल दीज, ये जो स्ट्राइक आउट है ना, इसका मतलब ये ऑब्सलीट हो चुका है, मतलब ये पहले यूज होता था लेकिन अब इसको नो वन इज यूजिंग दिस, ओके। तो उसको ऑब्सलीट कर दिया गया है, ये आपके ओल्ड वर्जन में था, अभी वर्जन में नहीं। तो स्ट्राइक आउट जहाँ पर भी आपको क्लासेस मेथड में कोई आता है तो इसका मतलब ये है कि नाउ दिस इज ऑब्सलीट, ओके। सो वी हैव टू टेक दिस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज ARGB 8888, ये कॉन्फ़िगरेशन में ले लेता हूँ, एंटर, बाहर आ जाओ, सेमीकोलन, काम हो गया हमारा। So we have successfully created a bitmap of width 720 and height 1280 with a configuration ARGB dot underscore 4 times 8. Okay, so this is the configuration, some kind of configuration is that. Then next, सबसे पहले फिर हाँ, ये होने के बाद में, अच्छा ये इसने बाद में लिए हैं, चलो आपको मैं वैसे ही बता देता हूँ। बिटमैप लेने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपका जो आईवी है, मैं यहाँ पर इसी के नीचे लेता हूँ। तो ये रहा आपका इमेज व्यू, जिसका हम लोगों ने अभी लिंकिंग किया इमेज व्यू आईडी के साथ में, ओके। ये हम लोग हमेशा करते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने इमेज व्यू के ऊपर एक ड्रॉएबल बैकग्राउंड सेट करना है और उसमें आपको अपने बिटमैप का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो ये रहा आपका इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट आईवी, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हाँ आईवी पर आपको क्या करना है, एक ड्रॉएबल बैकग्राउंड सेट करना है। तो सेट ड्रॉएबल बैकग्राउंड, सो बैकग्राउंड ड्रॉएबल यू कैन फाइंड ओवर हियर। देखो ये वाला है सेट बैकग्राउंड ड्रॉएबल। तो ये जो स्ट्राइक आउट आ रहा है इसका मतलब कि ये ऑब्सलीट हो चुका है बट स्टिल पीपल्स आर यूजिंग इट, ओके। तो हम लोग वाला यूज कर रहे हैं आईवी डॉट सेट बैकग्राउंड ड्रॉएबल, और इसमें आपको कौन सा ऑब्जेक्ट पास करना है, न्यू बैकग्राउंड बिटमैप ड्रॉएबल, बिटमैप ड्रॉएबल। और उसके अंदर देखो ये भी ऑब्सलीट है, तो इसके अंदर जो हम लोग पास कर रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट ऑफ बीजी, ठीक है। उसको बताना पड़ेगा। ये बिटमैप के रिगार्डिंग जो काम था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो आपको क्या बनाना है, कैनवस बनाना है, ओके। उसके ऊपर आपको कैनवस चाहिए, बिकॉज यू नो अबाउट इट के जब कैनवस होता है तभी उसके ऊपर कुछ पेंटिंग वगैरह आप लोग बना पाते हैं, ओके। दैट कैनवस यू नीड टू ड्रॉ। तो कैनवस बनाने के लिए आपको पता है कौन सी क्लास है, एक्स्ट्रा कैनवस, ओके। कैनवस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने ऐसी। तो CN कैनवस ऑब्जेक्ट बना दिया इज इक्वल टू न्यू कैनवस, और उसमें ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। ऑब्जेक्ट आपके बीजी का यानी कि आपके बिटमैप का, यानी कि आपके जो आपने बनाया है उसका ऑब्जेक्ट हम लोग पास कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया है कैनवस, ओके। उसके बाद में अगर कभी आपको कुछ कलर्स वगैरह यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग एक पेंट नाम का मेथड है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस क्रिएट अ न्यू क्लास, न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द पेंट। तो ये रहा आपका पेंट ऑब्जेक्ट बनाया मैंने पी, चलो स्मॉल में पेंट लिख देते हैं, इज इक्वल टू न्यू। ये तो हमारा नॉर्मल मेथड है जो हम लोग जावा में करते हैं, न्यू पेंट, ठीक है, डन। ये आपने एक पेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया बिकॉज ये आपको पेंट का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। कभी आपको अगर
कलरिंग करना है, बैकग्राउंड सेट करना है, फोरग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए सब काम के जितना भी है उसके लिए यानी शो शाइनिंग वाले काम के लिए आपको पेंट क्लास का यूज़ पड़ेगा। उसके बाद में इस पेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये पेंट ऑब्जेक्ट डॉट उसके ऊपर मैं कलर सेट करता हूँ, ठीक है। सेट कलर, कलर सेट किया कौन सा, मैंने रेड कलर सेट कर दिया, ठीक है। तो रेड कलर सेट कर दिए। अब ये रेड कलर का रेड आपको रेड कलर रेड पे दिखा रहा है। कभी भी अगर ऐसा कुछ रेड दिखा है ना तो उसके ऊपर कर्सर लेके जाने का, यू कैन मूव दैट कर्सर। और यहाँ पर जो नहीं है, क्रिएट लोकल वेरिएबल रेड, क्रिएट फील्ड रेड इन द मेन एक्टिविटी, नहीं ये नहीं है। हाँ सॉरी, कलर डॉट लेने का था ना, ये कलर डॉट, फिर आपको यहाँ पर कलर का नाम देना है। तो इन्हीं के पहले क्लास का नाम, कौन सा आपका कलर है उसका क्लास का नाम, बाद में फिर आपको कलर नेम प्रोवाइड करना है। सो यू कैन प्रोवाइड रेड नाउ, ठीक है। तो रेड प्रोवाइड हो गया। तो और तो कुछ नहीं है, सेट कलर, पेन डॉट सेट कलर, कलर डॉट ब्लू, यहाँ पर मैंने ले लिया। बस बस इतना इतना हो गया। पेन डॉट सेट कलर, पेन डॉट सेट कलर, कलर डॉट ब्लू, कलर तो सही लिया हूँ मैंने। कलर चलो ब्लू लेता हूँ। वाह ब्लू तो ले रहा है वो, रेड नहीं ले रहा है। अच्छा रेड का कुछ अलग होगा, आई थिंक रेड को, हाँ देखो रेड का RED है, मतलब कैपिटल में है, कॉन्स्टेंट है, कैपिटल में चला गया। ओके, आफ्टर दैट बाद में आपको पेंट का अगर कुछ टेक्स्ट वगैरह का साइज अगर सेट करना है तो भी हम लोग इसे करते हैं। अभी इसको हम लोग नहीं करते हैं, बाद में करते हैं। तो चलो अभी फिलहाल इसको कर ही लेते हैं जब है तो, वरना फिर बाद में वापस से वही करेंगे। डॉट सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट कलर, सेट टेक्स्ट साइज है ना, हाँ सेट टेक्स्ट, टेक्स्ट साइज, ये रही साइज। और साइज आप लोग को जितनी भी रखना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 50 रखा है तो मैं 50 रखता हूँ, बिकॉज तो यहाँ पर आपको पता है जब भी आप लोग कुछ ड्रॉ करते हैं तो आपको कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, वेन एवर यू ड्रॉ इन एपलेट ऑल्सो, वेन एवर यू ड्रॉ सम शेप, सो ऑल द शेप्स आर कंसिडर्ड एज अ रेक्टेंगल। ओके, पहले मैं आपको एक थोड़ा छोटा सा डेमो बता देता हूँ, वो डेमो से शायद आप लोग और अच्छे से समझ जाएं। वेयर आई कैन ड्रॉ नाउ, ओके। सो इफ इट इज़ योर स्क्रीन नाउ, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है। तो मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देख लो। आप लोग में से काफ़ी लोगों ने किया भी होगा और पता भी होगा, बट लेकिन काफ़ी लोग को इसमें नहीं भी पता है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान दो। तो दिस इज़ माई स्क्रीन, ओके। स्क्रीन बहुत टेढ़ी मेरी दिख रही है। Okay, so this is my screen. Okay, on the screen I want to draw a circle. If I want to draw a circle, okay, first start with the line. Okay, अगर मुझे line draw करना है, then how many parameters are required? You know, as the basic mathematics, you required 4 parameters. Okay, x1, y1, x2, y2. If this is the x and this is y, this is x and this is y, then you need x1, y1, मतलब आपका x1 समझ लो यहाँ पर आया, और y1 आपका यहाँ पर आया। ओके, सो x1 y1 आपका ये आ गया, ये पॉइंट। ओके, ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर आपका x2 y2 है, तो x2 आपका ये पोजीशन पे आ गया फॉर एग्जांपल, और y2 आपका ये पोजीशन पे है, ठीक है। दोनों का आप ज्वाइन करेंगे तो मिल जाएगा हम लोग को ये कोऑर्डिनेट। ओके, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। तो बाद में फिर आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, लाइन ड्रॉ करो ना, ये लाइन ड्रॉ हो गया आपकी यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। so all the shapes are considered in a rectangle. Okay, rectangle you can see. so ये रही आपकी width और ये रही height. okay, so ये दोनों के हिसाब से कंसिडर होता है। ये तो हो गया हमारा ये केस का। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ। अब आपको ड्रॉ करना है भाई साहब, आपको सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए सिंपल ऐसे नहीं कि यहाँ पे उठाए और सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सर्कल कुछ अलग तरीके से ड्रॉ होता है। ओके, सो व्हेन यू ड्रॉ सर्कल इट अगेन रिक्वायर्स यू फ्यू पैरामीटर्स। ओके, सो आई थिंक 4 or 3 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। इफ यू विल सी,
फॉर ड्राइंग अ सर्कल टू पैरामीटर आर एट लीस्ट रिक्वायर्ड, ड्रॉ सर्कल, सॉरी 1 2 3। सो इसके अंदर कुछ पैरामीटर आपके आपकी हाइट और विड्थ के होते हैं, और कुछ पैरामीटर उसके अंदर आपके बेसिकली आपके रेडियस के होते हैं, यानी कि आपको कितने रेडियस का बनाना है। सो यहाँ पर आपका फॉर एग्जांपल ये रही हमारा x है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है, ये हमारी विड्थ है, ये हमारा हाइट है। ओके, सो अगर मुझे अगर अगर कभी मुझे ड्रॉ करना है एक सर्कल, तो मैं सर्कल को यहाँ पे ले लेता हूँ पहले साइड में। ओके, मुझे सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो जो सर्कल के ये रहा ऊपर लाइन, ये रही नीचे की लाइन। ओके, ये रही लेफ्ट लाइन, और ये रही राइट लाइन। ओके, नाउ इमेजिन कि अब जो ये है ये आपका सर्कल है, वी कैन ट्रीट योर सर्कल एज अ रेक्टेंगल नाउ। ओके, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ओके, सो अगर ओवल है तो रेक्टेंगल, मतलब अगर कभी आपको अगर आपको ओवल अगर ड्रॉ करना है तो आपको रेक्टेंगल में शेप में लेना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज योर, ये बोलेंगे इसको आपका, आपके एक्स को आपको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, सो जब आपका फर्स्ट पैरामीटर फॉर फॉर ड्राइंग अ लाइन, ओके, आई एम सॉरी, लाइन नहीं, सर्कल, सर्कल, सॉरी। तो ये रहा आपका सर्कल ड्रॉ करने वाला। ठीक है, मैं से आपको जब एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आप लोग को समझ जाएंगे। तो सर्कल ड्रॉ करने के सबसे पहला पैरामीटर आपको रिक्वायर्ड है एक्स और वाई का। ठीक है, तो एक्स कॉमा वाई। ओके, नाउ एक्स और वाई आपका ये पॉइंट है। ठीक है, तो एक्स हम लोग का डिसाइड हो गया, हमारा एक्स डिसाइड हो गया। ओके, हमारा वाई डिसाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने यहाँ तक आ गए। ठीक है, ये एक्स वाला पॉइंट वहाँ से तक आ गया। ठीक है, आने के बाद में हम लोग को ये वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल गया। अब यहाँ से आपका रेक्टेंगल बनना स्टार्ट करेगा। तो फर्स्ट 2 हो गए पैरामीटर, उसके बाद में आपको जो ड्रॉ करना है वो उसका उसकी आपको विड्थ या हाइट, अब तीनों में से दोनों में से कोई एक आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोग सर्कल ड्रॉ कर रहे थे, ड्रॉ सर्कल। तो दो पैरामीटर आपके 200 बाई 350। व्हाट इज दीज टू पैरामीटर? 200 आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, 350 आपका वाई कोऑर्डिनेट है। तो मतलब आप क्या है 200, तो ये आप या आपका जो इतना जो डिस्टेंस है वो है 200। ठीक है, ये रहा 200, और उसके बाद में ये जो सेकंड पैरामीटर आपका 350, सो दिस इज 350। ओके, तो ये बन गया आपका 350। तो ये दो पैरामीटर अप्लाई करने के बाद में वी गॉट दिस पॉइंट। ओके, यहाँ से मतलब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा रेक्टेंगल। ओके, उसके बाद में थर्ड वाला जो आपका पैरामीटर है, ये मे बी आपका शायद आपकी विड्थ है। ओके, सो ये अगर विड्थ है तो मतलब आपका जो रेडियस रहेगा कि क्या रहेगा, डायमीटर, डायमीटर रहता है कि रेडियस रहता है? आपने में किसी ने ड्रॉ किया है कैपिटल लेटर में? ठीक है, अरे बोलो। अरे है, जिंदा है सब। यस, हाँ तो बोलो। व्हाट इज द थर्ड पैरामीटर? थर्ड पैरामीटर आपका वेट होता है, हाइट होता है, क्या होता है, ये रेडियस होता है। तो बहरहाल आपका थर्ड पैरामीटर डिसाइड करता है कि आपका जो सर्कल है वो, चलो वो मतलब कि कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके जो थर्ड पैरामीटर है या जो भी है, तो उसके थ्रू हम लोग का डिसाइड होगा कि आपका ये रेक्टेंगल कैसा बनेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ओवल ड्रॉ कर रहे हो तो समझ लो ये आपका ये बना, और इसके अंदर आपका ये ओवल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अगर सर्कल है तो स्क्वायर टाइप रहेगा। तो लाइक ये है कॉन्सेप्ट। ओके, अब इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर अगर अलग है तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, एंड देन विल स्टार्ट विद दिस ऑल्सो। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं, बहुत अभी बातें बहुत हो गई हैं। सबसे पहले हम लोग एक टेक्स्ट ड्रॉ कर रहे हैं कैनवस, क्योंकि हम लोग को सारी चीज़ें देखो कैनवस पे करना है। तो कैनवस का ऑब्जेक्ट कैनवस डॉट ड्रॉ टेक्स्ट। ओके, तो ये रहा कैनवस का ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉ टेक्स्ट। अब देखो, अच्छा इसके अंदर आपको जब टेक्स्ट आप ड्रॉ करेंगे तो हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड वो आपको बताएगा कंट्रोल स्पेस। तो ड्रॉ टेक्स्ट, तो यहाँ पर बहुत सारे, हमारा फर्स्ट वाला हमारा है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट जो कि ड्रॉ करना है वो लिखना है, देन फ्लोट टेक्स्ट, फ्लोट वाई एंड पेंट का अगर ऑप्शन आप दे रहे हो।
ये पेंट का ऑप्शन क्यों रखा है उसने? बिकॉज अगर आपको वो टेक्स्ट को पर्टिकुलर कलर में पर्टिकुलर साइज में लिखना है जो हम लोगों ने ऑलरेडी मेंशन किया है, तो उसके लिए यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट पैरामीटर रिगार्डिंग व्हाट टेक्स्ट यू वांट टू डिस्प्ले, देखो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट लिख के आ गया। ओके, सो ये हम लोग लिखेंगे वेलकम। तो ये मैंने इतना लिखा हूँ, वेलकम, दिस इज माय टेक्स्ट। ओके, सेकंड पैरामीटर इज एक्स पैरामीटर। ओके, मतलब आपको कौन से पॉइंट से लिखना स्टार्ट करना है, मतलब एक्स और वाई, सॉरी एक्स एंड वाई, तो दोनों पॉइंट मिलके उस पॉइंट से लिखना स्टार्ट करेगा। ठीक है, so instead of taking other coordinates and other numbers I would be taking these numbers only, because ये मेरा ऑलरेडी सेट किया हुआ है, इसके लिए मैं ये नंबर्स ले रहा हूँ। बिकॉज फिर आपके स्क्रीन पर कोई यहाँ जा रहा है, कोई इसके ऊपर आ गया, कोई तीसरे पे आ गया, तो वो सब प्रॉब्लम्स ना हो। सो आई एम टेकिंग दीज कोऑर्डिनेट्स ओनली, लाइक 120 एंड 150। ओके, तो 120 एंड 150 डन। सो ऑटोमेटिक आ गया 120 150। ओके, उसके बाद में लास्ट वाला एक और है। लास्ट वाला पैरामीटर आपको ये पूछ रहा है कि भाई ये जो आपने लिखा है वेलकम, इसका आपको कोई पर्टिकुलर कलर सेट करना है, इसकी पर्टिकुलर आपको साइज सेट करना है। तो करना है तो सबसे पहले आपको उसका ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर पेंट लिया है, क्लास पेंट का ऑब्जेक्ट पेंट स्मॉल में, एंड देन पेंट के ऊपर हम लोगों ने कलर सेट किया है, रेड वाला कलर, और साइज हम लोगों ने 50 सेट की है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल दोस पैरामीटर, इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट पेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम लोगों ने पास कर दिए, बस इतना पास कर दिए। सो रेड कलर और 50 साइज विल बी अप्लाइड टू दिस वेलकम टेक्स्ट। ओके, देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर मुझे इसको हटाना पड़ेगा और मुझे इसको रन करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग एक एक शेप लेते जाएंगे, उसको ड्रॉ करते जाएंगे और एप्लीकेशन रन करते जाएंगे। ओके, सो जस्ट वेट एंड वॉच। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ज़रा फटाफट करना पड़ेगा। आई एम स्टॉपिंग दिस थिंग नाउ। ओके, तो इतना होने के बाद में इसको मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन को डायरेक्टली। यहाँ पर हम लोग आपको वाइजर से दिखेगा भी, वाइजर व्यू। एनीवन प्लीज रिप्लाई मी, कैन यू सी माय स्क्रीन एंड वाइजर स्क्रीन? अगर किसी का रिप्लाई नहीं आता है तो ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ अभी यहाँ पर। ओके, बाकी लोग कहाँ गए सर? एक ही का रिप्लाई सिर्फ? ओके, ठीक है भाई, ठीक है। सो एज यू कैन सी दिस इज माय स्क्रीन। ओके, और मैंने रन किया हूँ और रन हुआ भी है मेरा, बट आई विल रन इट अगेन। आप लोग के सामने एक बार और रन करता हूँ। देखो, दिस इज माय यू नो आई कैन सी एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन पे विल फाइंड द टेक्स्ट इज ओवर हियर एंड वेलकम लिख के आया है, और उसकी जो लोकेशन है वो 120 बाय 150 है। सो 120 बाय 150 समझ लो आप जो भी है। और पेंट मतलब कि रेड कलर अप्लाई हुआ है, एंड द साइज इज 50। ओके, इफ यू इंक्रीज द साइज, थोड़ा सा हम लोग साइज बढ़ाते हैं ताकि आपको यकीन आए कि हाँ द साइज इज बीइंग टेकन बाय दिस पेंट ऑब्जेक्ट ओनली। तो ये रही, वापस से मैंने रन किया हूँ, वापस से एप्लीकेशन रन होगी। Okay, now the size is 70. Okay, so in this way you can change it. Okay,
The first one we have done, that is we have drawn the text. Okay, but that's a very basic graphical primitive. We have drawn it on the screen. The second thing we have to do is we have to draw the rectangle. Okay, you will find for rectangle we have four parameter like 1, 2, 3, 4, and absolutely the first two parameter are the x and y coordinate from where you have to start the rectangle. And the rectangle required how many parameter? Your how many parameter? Two parameters are required. Okay, एक तो आपको कितना लंबा है कितना चौड़ा है तो उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा. So draw rect is the correct method. So canvas dot draw rect. Draw rect, इसमें आपको how many parameters you have to give? Draw rect. इसमें जो जो मेरे पास में पैरामीटर्स है वही पैरामीटर देता हूँ, सो दैट इट विल बी फिक्स एट पर्टिकुलर लोकेशन ओनली. अदरवाइज यहाँ वहाँ हुआ तो फिर इसको चेंज करते बैठना पड़ेगा मुझे. सो 400, 200 दैट इज टॉप, आपका टॉप. फिर लेफ्ट से आपको एक पॉइंट मिलेगा. ओके, और उसके बाद में राइट एंड बॉटम. तो ये सारे पैरामीटर्स है. और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया हूँ, पेंट का ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ, सो दैट विल टेक द color or as a red and the text as a 70. Okay, so I will change the 70 again as a 50 only, so that all the things will be okay, because मैंने रन करके देखा हूँ, इसके लिए मुझे आइडिया है. अब मैं वापस रन करता हूँ इसको. So you will find one rectangle has been drawn and the color is like red and the size is 70. यहाँ पर कुछ मैंने टेक्स्ट नहीं लिखा हूँ, उसके लिए फिलहाल कुछ उसने लिया नहीं है. ओके, सो दिस इज द रेक्टेंगल. अब ये तो अगर ये तो एकदम कॉमन है, सिंपल है आप लोगों के लिए, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम मैं सिंपली देखो यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट कर रहा हूँ. तो दिस इज 420 एंड 150 है. तो मैंने यहाँ पर 420 150 है, 420 है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ. ये जो आपका आ रहा है ना यहाँ पर, ये वेलकम लिख के आ रहा है, ये वेलकम को यहाँ पर होना चाहिए. ठीक है, तो इसको मैं क्या कम करता हूँ, 420 420 ले लेता हूँ. और इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वेलकम आई विल राइट दी रेक्टेंगल. ओके, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल. ओके, सो आई विल रन इट अगेन. ओके, सो रेक्टेंगल लिखा हुआ ऊपर है और नीचे आपका रेक्टेंगल ड्रॉन है. ओके, कम टू द नेक्स्ट शेप. नेक्स्ट शेप आपका है सर्कल ड्रॉ करना. ठीक है, तो सर्कल अब मैं डायरेक्टली यहीं से ले लेता हूँ, बिकॉज आपको तो पता ही है. तो ये रहा आपका सर्कल ड्रॉ करना. तो सर्कल लिखकर ऊपर आएगा और नीचे सर्कल ड्रॉ के आएगा. ठीक है, अगर आपको इसको चेंज करना है, बल्कि अगर आपको इसका इसका अगर आपको चेंज करना है, कलर आपको अगर चेंज करना है, तो वी कैन हैव अनदर ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर बनाया है. तो चलो मैं बना देता हूँ एक और ऑब्जेक्ट. ये रहा आपका पेंट और ये रहा पेंट 1. देखो मुझे खुद ही वो सजेस्ट कर रहा है सब. ये रहा आपका पेंट, बाहर आ जाओ. और फिर इसके अंदर मैं कलर सेट कर देता हूँ. तो पेंट वन डॉट सेट कलर और कलर दे देते हैं हम लोग भाई साहब, कलर डॉट ब्लू. ठीक है, ब्लू. So I have one more object of the paint class as a paint one. Okay, so that I can give different name to different one. ठीक है, so मैं टेक्स्ट के लिए ब्लू देता हूँ. ठीक है, तो मैं टेक्स्ट के लिए ब्लू देता हूँ, सो पेंट वन पास करना पड़ेगा. और ये टेक्स्ट के लिए भी मैं ब्लू देता हूँ. ठीक है, तो अब देखते हैं. ओके, सो जो लिख के आया है वो आपको आप लोग देख सकते हैं कि उसका टेक्स्ट का जो कलर है वो ब्लू में है और जो शेप है तो वो रेड में है. लेकिन छोटा हो गया ना, तो अभी छोटा हो गया तो आपको उसको कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज आपने उसके अंदर कुछ साइज आपने सेट नहीं किए. तो चलो साइज सेट करते हैं उसकी. तो ये रहा पेंट वन का आपका
रहा पेंट वन डॉट सेट टेक्स्ट साइज, और जितनी साइज भाई साहब की है उतनी साइज हम लोग भी ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस रन इट अगेन एंड फाइंड द डिफरेंस। ओके, आ गया बराबर अभी। नाउ द रिक्वायर्ड टेक्स्ट साइज इज having 50 size, okay, so ये 50 size का हो गया। So we have made two object of the paint class, and for drawing the text we have used the paint one, so that it is using the blue color, and for drawing the shape they are using the red color, okay। Come to the next one, we have square, we have square। तो for square you know क्या लेना है, फॉर ये हो गया आपका। इसके लिए भी मैं पेंट वन लेता हूँ और नीचे वाले के लिए पेंट लेता हूँ, तो कैन इजीली अंडरस्टैंड। सो रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, okay, red वाला आ गया। okay, why I am copying all this code from this file, because you know I know that के these are the, you know, the location जो है the coordinate which is there now, so these coordinates are fixed, okay। if I change the coordinate ना, तो ये वाला सर्कल आपका इस पे चला जाएगा, ये वाला इस पे आ जाएगा, तो आपको हर एक चीज को एकदम R&D कर करके मैंने कोऑर्डिनेट्स निकाला, ओके। तो इसके लिए फिर इसको छेड़ना मतलब कि सही नहीं है, इसके लिए आई एम टेकिंग दीज कोऑर्डिनेट्स ओनली, ओके। तो नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। हाँ, and the last one is to draw a line, and for drawing a line you know what to take। तो ऐसा हमारा कोड कहाँ पर है, so again this is my code, okay। For this one, for drawing the text, I am taking paint one, okay। Save, run it again, and you will find, ओके भाई साहब, तो लाइन भी हमारी आ गई है, और हम लोग ने इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ने इसका डिसाइड भी किया। सो वी हैव all the almost all the objects, all the graphical primitives like text, line, circle, square, rectangle, okay। So these are the basic ones, so we can include this much only, okay। अगर आपको चाहिए तो you can write one text basic graphical primitives, okay। बेसिक ग्राफिकल प्रिमिटिव्स आप लोग लिख सकते हैं, और उसका जो लोकेशन जो कोऑर्डिनेट्स है वो कुछ ऐसा दे सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे तो अराउंड आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, आई थिंक 50 तक आ जाएगा, 50 नहीं तो 30, एंड देन उसका जो वाई कोऑर्डिनेट्स है तो वाई कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएगा अराउंड 100 तक, तो यहाँ से लिखेंगे वो यहाँ तक बेसिक ग्राफिकल प्रिमिटिव। चेक करना है, एक बार चेक कर लेते हैं लोग। ड्रॉ टेक्स्ट कैनवस डॉट ड्रॉ टेक्स्ट, और इसमें मुझे क्या देना है, सबसे पहले तो टेक्स्ट देना है। द टेक्स्ट इज बेसिक ग्राफिकल primitives, okay। so this will be my text, and कहाँ लिखना है ये टेक्स्ट मुझे, x and y coordinates I need to mention the x and y coordinate। तो x coordinate मैं देता हूँ अंदाज़ा एक मेरा है 50 का, और y coordinate मैं देता हूँ अराउंड 100 का, ठीक है। और इसमें आपको कौन से कलर से लिखना है, तो मेरे पास में पेंट ऑलरेडी है, पेंट वन को दे देता हूँ, राइट। सो एक अभी एक हमने खुद से किया, ठीक है। एक जो खुद से किया है तो इसका आउटपुट क्या आता है हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। ओके, बेसिक ग्राफिकल प्रिमिटिव्स आया लिख के बराबर, मतलब थोड़ा सा अंदाजा अपने से ही हुआ, थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को थोड़ा कम कर देंगे तो काम हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट को कम करते हैं, मैं ले लेता हूँ 30, ओके। सॉरी, कुछ और कम हुआ, उल्टा है लगता है, मुझे लग रहा है उल्टा है। तो दिस इज 50, राइट। तो थोड़ा सा मैं 50 कर दूँगा। ओके, सो दिस इज नाउ यू कैन R&D। अब देखो ये खाली एक टेक्स्ट ड्रॉ करने के लिए इतना R&D करना पड़ रहा है,
तो ये सारे शेप्स को ड्रॉ करने के लिए भी R&D बहुत करना पड़ता है, ठीक है। सो दीज आर ऑल ग्राफिकल प्रिमिटिव्स आई कैन से, ओके। इसके अंदर हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, हम लोग ने सिर्फ वी हैव मेक यूज ऑफ दी बिटमैप क्लास, और उसका हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किए, और अपने इमेज व्यू पर हम लोगों ने अपने इमेज व्यू के ऊपर हम लोगों ने एक ड्रॉएबल बैकग्राउंड सेट की, ओके, और उसमें हमने बीजे का अपना ऑब्जेक्ट पास किया, ओके। ये होने के बाद में हमारा एक बिट मैप रेडी है। आई थिंक यू हैव हर्ड दिस वर्ड इन द सीजी आल्सो, बिट मैप काफी बार आपने सुना है। So it is related to the graphic only. There's a class which is related to the graphic. Okay. After that we have taken the canvas. Okay. because सारी चीजें canvas पे ही draw होनी है, और उससे हम लोग ने पीछे का ऑब्जेक्ट पास किया, तो ये अभी आ गया, ये सेट हो गया आपके बिट मैप का। ओके। सिंपली आप उनको थोड़ा सा इमेजिन ऐसे कर सकते हो, पीछे आपका लकड़ी का फ्रेम है। सो इन द वे वी कैन बाकी का बाद में हम लोग करते हैं थोड़ा सा। सॉरी, मैंने म्यूट करके बोलना शुरू कर दिया था, सॉरी। सो दिस इज द सिक्स एक्सपेरिमेंट ऑफ drawing the basic graphical primitives, okay. I will share this code also, I will share the recording on YouTube also. You can take the code, you can draw it, you can make the R&D, and you can draw other shapes also, okay। तो आप थोड़े से पैरामीटर वगैरह चेंज कर करके R&D कर सकते हैं, okay। So thank you, that's all for the today's session, okay। I will share the academic slide। समझ में आया आप लोग को कैसे करना है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ओके। So please do it at your home also. If you are having the Android Studio and having good configuration field, then you can do it at your home also. Okay. So let me share the recording. Let me install the recording.